تو آپ نہیں ہم کتنا آگے بڑھے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم ابھی آپ نے ذکر کیا, ہم نے کہا ابھی لگا دیتے ہیں پٹیشن. میرے منشی کو بمے کاغذات کے آپ کے کورٹ کے باہر سے جو ہے اٹھا لیا گیا تھا. آپ کے پاس کمپلینٹ آئی ہوئی ہے؟ کوئی کمپلینٹ میرے پاس نہیں ہے. ڈونٹ میک ایلیگیشن. سر رجسٹرار کے پاس دی ہوئی ہے, جناب کو پتا ہے؟ نہیں, مجھے کوئی چیز نہیں پتا ہے. دیکھیے دس از کورٹ آف لا, ڈونٹ ڈو دیز تھنگز. ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب, اور مجھے یہ کانسیپٹ منشی سمجھ نہیں آتا ہے. سپریم کورٹ میں منشی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. Can I let me complete a sentence? ٹھیک ہے. It's advocate on record. What do you mean by منشی, میرا منشی؟ یا منشی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, یا ASC ہے, AOR ہے, ختم. یہ منشی لوگ جو گھس رہے ہیں نا چیمبرز وغیرہ میں, یہ بالکل غلط کام ہے. کون ہے منشی آ کر کے یہ چیزیں جو شروع ہو جاتی ہیں نا عدالتوں میں, منشی میرا آیا تھا. آپ خود آئیے, آپ کا جونیئر آئے, ایڈوکیٹ آن ریکارڈ آئے. ڈونٹ میک ایلیگیشنز کہ میرے پاس کوئی کمپلینٹ ہے. آئی ہیو نو کمپلینٹ بفور می, اینڈ آئی ول, if there is a complaint of a munshi, I will not even read it. If it's not a lawyer's complaint. It is my complaint. ابھی آپ منشی کہہ رہے ہیں, میرا منشی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ پلیز کیس چلا لیجیے اگر آپ کو چلانا ہے. کاغذ تو AOR بھی نہیں اٹھاتا. آپ یہ کیس چلانا چاہتے ہیں یا نہیں چلانا چاہتے ہیں کوسا صاحب؟ فائل تو آپ یہ کیس چلانا چاہتے ہیں یا نہیں چلانا چاہتے؟ ڈیفینیٹلی چلانا چاہتا ہوں. تو چلائیے پلیز. وہ ذرا کیس بھی لگا دیجئے, کیونکہ وہ میں آپ کی منشی کی کمپلینٹس نہیں سنوں گا. منشی کی نہیں ہے, ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب کو نوٹس میں لائے تھے وہ. میں جب ہوں ادھر سے بات کیجئے, ٹھیک ہے؟ اگر آپ دوسرے لوگوں ہمارے کولیگ سے بارے میں بات کریں جو موجود بھی نہیں ہیں, اٹس ناٹ فیئر. نہیں, میں سردار طارق, آپ پلیز پروسیڈ وتھ یور کیس, اپنا کیس چلا لیں پلیز. السلام علیکم, میں جمیل فاروقی ہوں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. تمام تعریفیں ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرگ سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے. اور تمام درود پاک نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر, جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, جن کی وجہ سے ہم ہیں, جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے. قیدی نمبر 804 اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہے. قیدی نمبر 804 نے پورے نظام اور انتظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے. وہاں سے انہوں نے کیا میسج دیا ہے, کیا بات کی ہے, اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے. ساتھ ساتھ آپ سے کچھ لمحے پہلے ایک بڑا فیصلہ سنایا گیا ہے. یہ فیصلہ تاحیات نااہلی کیس سے متعلق تھا. شارٹ آرڈر آیا ہے, محفوظ فیصلہ 5:15 پر سنایا گیا ہے. فیصلے کے اندر کیا ہے, اس سے کس کس کو فائدہ ہو سکتا ہے, یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. ساتھ ساتھ آج جب یہ فیصلہ سنایا جا رہا تھا, اس سے کچھ گھنٹے پہلے سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت کی روبکار جاری ہوئی, ان کو رہا کرنے کا کہا گیا. کیا عمران خان رہا ہو سکتے ہیں, اس کے اوپر بات کرنی ہے. اس کے علاوہ لائیو نشریات کے ڈاؤن گریڈز تو اپنی جگہ پر ہیں, لائیو نشریات کے فوائد بھی ہیں. وہ کیا, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے تاکہ تمام تر انفارمیشن فلو انٹیکٹ رہے. ایک اور گزارش, اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, سبسکرائب کیجئے. بیل آئیکن یعنی گھنٹا یا گھنٹی اپنے انگوٹھے یا انگلی سے دبا دیجئے گا تاکہ تمام تر نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہے. ٹاپ سٹوریز, آج کی پہلی ٹاپ سٹوری اب سے کچھ دیر پہلے آئی ہے. وہ یہ ہے کہ تاحیات نااہلی کیس کے اوپر محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا. سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کالعدم قرار دے دی ہے. سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی ختم کر دی ہے. سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی ختم کرنے کے بعد شارٹ آرڈر میں سنایا ہے کہ تاحیات نااہلی کی سزا اب ختم کی جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد وہ تمام سیاستدان جو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی ہوئے تھے وہ اب انتخابات لڑنے کے اہل ہوں گے. اس کا ڈیٹیلڈ آرڈر بعد میں آئے گا, لیکن شارٹ آرڈر آج سنا دیا گیا ہے. یہ پہلی ہماری ٹاپ سٹوری ہے, بریکنگ نیوز ہے جو آپ تک شیئر کرنی تھی. آج کی سیکنڈ ٹاپ سٹوری ہم شیئر کرتے ہیں. سیکنڈ ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سائفر کیس کے اندر ضمانت کی روبکار جاری کر دی گئی ہے. یہ آپ اس کا تلاشا دیکھ سکتے ہیں. روبکار سرکار رہائی ملزم بادل جناب جج خصوصی برائے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اسلام آباد, مقدمہ نمبر 06/23, مورخہ 15/8/2023, یعنی ہاں جی, تھانہ فلاں فلاں فلاں, عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی, سکنہ بنی گالہ اسلام آباد. مقدمہ عنوان بالا میں ملزم کی ضمانت منظور ہو چکی ہے, لہذا اگر کسی دیگر مقدمے مطلوب نہ ہو تو بعد از تصدیق مچلکہ رہا کیا جائے.
और तारीख पेशी से उसे मुत्तला किया जाए। अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि एक केस में उनकी रिहाई हो चुकी है, साइफर केस के अंदर जमानत के ऊपर मचलकों के एवज, लेकिन वो रिहा नहीं हो सकते क्योंकि वो दूसरे केस के अंदर गिरफ्तार हो चुके हैं, ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं। और मुल्क के हालात जो हैं वो आपके और हमारे सामने। आज की थर्ड टॉप स्टोरी आपके सामने रखते हैं। थर्ड टॉप स्टोरी ये है कि इमरान खान ने द इकोनॉमिस्ट में छपने वाले मजमून की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। यही वो थर्ड टॉप स्टोरी है जिसने निजाम और इंतजाम दोनों को न सिर्फ नंगा कर दिया है बल्कि उनके बखिए उधेड़ कर रख दिए। भाई द इकोनॉमिस्ट के अंदर एक मजमून छपा, हर 3-4-6 घंटे के बाद वो पोस्ट कर रहे हैं। उनके तकरीबन 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। आज की टॉप स्टोरी ये भी है, 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। और हमारे जो निगरां वजीर इत्तलात मौसूफ है कहते फिर रहे हैं कि इकोनॉमिस्ट अपनी कदरों मंजिलत खो चुका है। भाई इकोनॉमिस्ट में कैसे छपा मजमून, इसके ऊपर इमरान खान ने कहा कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, मैंने डिक्टेट करवाया था ये मजमून, और जब मैंने ये डिक्टेट करवाया था तो उसकी जिम्मेदारी भी मैं कबूल करता हूं। तमाम तर सहाफियों और वकला से उन्होंने आज गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू को वकला ने कोट एंड कोट बाहर बयान कर दिया है। इमरान खान ने यहां तक कह दिया कि मेरे ऊपर बनाए जाने वाले तमाम केसेस झूठे हैं, मुझे गिरफ्तार करने की तमाम सीसीटीवी फुटेजेस गायब कर दी गई। उन्होंने यह तक कहा कि मेरी एक अदद तकरीर है जो जल्द सोशल मीडिया के ऊपर आपके सामने पहुंच जाएगी। सिर्फ मजमून ही नहीं था, तकरीर भी आने लगी है। उन्होंने यह कहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को चाहे जिस भी हालत में होते हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी जमात पार्टिसिपेट करेगी और इनको वो भागने नहीं देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ये हुकूमत और ये सिस्टम इंतखाबात से फरार की कोशिश इख्तियार कर रहा है और वो ये कभी नहीं होने देंगे। ये इमरान खान साहब के कोट एंड कोट जुमले हैं जो मैंने आप तक रख दिए हैं। आज की टोटल 3 टॉप स्टोरीज हैं जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। शुरू में आपने एक वीडियो मुलाहिजा की सरदार लतीफ खान खोसा और काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान मुकालमे की। इसके ऊपर मेरे जो कमेंट्स हैं महफूज हैं, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आपने इसको बगौर सुनना है, इसलिए वीडियो को आपने आखिर तक मुलाहिजा करना है। अभी जी आज का इंपॉर्टेंट सेगमेंट बोलती तस्वीरें। बोलती तस्वीरें, पहली बोलती तस्वीर, ये तस्वीर शायद आपको ग्राउंड ना दिखा पाए लेकिन शख्सियात नजर आ रही हैं। बिलावल भुट्टो सेंटर में है पहली तस्वीर, लेकिन जिस लाहौर के यानी अंदरूनी लाहौर की गली के अंदर ये गुजरते हुए जा रहे हैं उसको फुली कार्पेटेड किया गया ताकि साहब बहादुर का वेलकम किया जा सके। नॉर्मली ऐसा कभी नहीं होता, लाहौर के बासी जरा मुख्तलिफ अंदाज से जीते हैं, लेकिन क्योंकि साईयों का दौर है तो साई अपने अंदाज से इस चीज को करते होते हैं। तो आप देखें कि नीचे जेर जमीन यानी उनके जेरे बिलावल भुट्टो जरदारी कारपेट बिछाया गया है और पूरी गली को कारपेट से सजाया गया था। दिस इज हाउ थिंग्स आर। और इस सिचुएशन के अंदर ये एक्सपेक्ट करते हैं, यानी पब्लिक एक्सपेक्ट करती है कि उनके मसाइल का हल ये वाले सियासतदान ढूंढेंगे। दूसरी बोलती तस्वीर आपके सामने शेयर करते हैं। जस्ट सी द सेकंड बोलती तस्वीर। मियां नवाज शरीफ साहब, ताहयात नाहली केस में जहांगीर तरीन साहब को फायदा हुआ है। ताहयात नाहली केस में यूसुफ रजा गिलानी साहब को फायदा हुआ है। ताहयात नाहली केस में मियां नवाज शरीफ साहब को फायदा हुआ है और अब ये इंतखाबात में मेरे हिसाब से कंटेस्ट कर सकेंगे। और क्या लीगैलिटीज आती हैं, लीगल पॉइंट्स आते हैं, वो आने वाले दिनों में पता चल जाएंगे, लेकिन अभी तक तो यही है। तो मियां नवाज शरीफ साहब जो लंदन से पाकिस्तान वापस आए, जो कहते हैं मैं किसी डील के तहत नहीं आया, तो सिस्टम उनको बाकायदा तौर पर वेलकम करता हुआ दिखाई देता है। हर जगह पर बड़े बड़े नामवर जो वकला हैं, माहिर आईन और कानून है, वो कहते हैं कि फैसले भी बिल्कुल वैसे आएंगे जिस तरह की डील हुई होगी। तो अब इसको अब खारिज इम्कान तो करार नहीं दिया जा सकता। इस शख्सियत के लिए कोई एक लफ्ज कहना चाहेंगे? अगर आप कहना चाहें तो नीचे हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है। इस शख्सियत के लिए कोई एक भी अगर आप लफ्ज कहना चाहें तो हमारा कमेंट बॉक्स हाजिर है। आज का मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट, कैसे कर लेते हो यार। मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट, कैसे कर लेते हो यार। उसके पहले उसके हवाले से एक और चीज मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला वायरल बयान, अब सोशल मीडिया पर भी मार्शल लॉ लगा दिया गया है। अनवर रोदी कहते हैं अब सोशल मीडिया पर भी मार्शल लॉ लगा दिया गया है, इससे भी बात नहीं बनेगी, अवाम की आवाज सुनना पड़ेगी। इसको सोशल लॉ कह सकते हैं आप, एंटी सोशल लॉ हो चुका है, लेकिन अवाम की आवाज सुनना पड़ेगी। लेकिन जिन्होंने आवाज सुननी है अवाम की, उन्होंने कानों के ऊपर एयरबड्स लगाए हुए हैं और उनको आवाज सुनाई नहीं दे रही। और उनसे मैं इतना कहूंगा, भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। अगला वायरल बयान,
इकरारुल हसन, अगर किसी पार्टी के फंड रेजिंग इवेंट को नाकाम बनाने के लिए आपको पूरे मुल्क का सोशल मीडिया बंद करना पड़े तो समझ जाइए कि वो पार्टी आज भी पूरी ताकत से खड़ी है, जबकि उसके हरीफों की कांपे टांग रही हैं। सिर्फ कांपे ही नहीं टांग रही, हटे 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 भी टाट हो रहे हैं। समझ रहे होंगे ना आप? अच्छा जी, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? आगे, इमरान रियाज खान, ऐसे सारे दोस्त जो इमरान खान के आर्टिकल पर परेशान हैं, मैं उनसे हमदर्दी कर सकता हूं कि उनको लीडर के नाम पर ऐसी आइटम मिली जो आर्टिकल लिख नहीं सकती, अगर वो खुद लिख कर दें तो वो पढ़ नहीं सकता। नवाज शरीफ साहब तो कह रहे इमरान भाई कैसे कर लेते हो मियां साहब। आगे जी, अजहर मिशवानी, क्या आपको मालूम है इमरान खान को इस वक्त 1-2 करोड़ रुपए के तोहफे की तोशाखाना करप्शन का केस बनाकर बेगुनाह कैद कर रखा है, और पिछले 3 घंटे में सिर्फ सोशल मीडिया पर इमरान खान के वर्कर्स ने 10 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठे कर लिए। इल्जाम तो ऐसा लगाओ कि कोई तुम पर एतबार तो करे। भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? आगे आगे जी, बिलावल भुट्टो जरदारी, इमरान खान बेगुनाह है तो उन्हें जेल में नहीं होना चाहिए। इमरान खान बेगुनाह है तो उन्हें जेल में नहीं होना चाहिए, जाती दुश्मनी की बजाय सियासी इख्तलाफ होना चाहिए। काश ये आप 16 माह की जो हुकूमत की काबीना का हिस्सा थे उस वक्त बोलते तो शायद आपकी बात को ज्यादा वैल्यू मिलती और आपका कद और बड़ा होता। बिलावल भुट्टो साहब कैसे कर लेते हो यार। आगे, हारून रशीद साहब, इमरान खान के मजमून के क़ारीन 5.1 मिलियन हो गए, अभी वैसे 10 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं, जो बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया में इसका असर होगा। वाह जी क़ारीन वाह, कैसे कर लेते हो यार। आगे, सुहेल वड़ाइच साहब, सियासी और अस्करी मंसूबा बनाने वालों से अर्ज है तहरीक इंसाफ को भी कौमी और सियासी धारे में शरीक होने दिया जाए। अगर उनके साथ बेगानगी का सलूक जारी रहा तो अंदेशा है मुल्क की इस नई पार्टी के लोग रियासत सियासत से बेपरवाही का रवैया अख्तियार कर लेंगे। ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा कौमी नुकसान होगा। ये सुहेल वड़ाइच साहब भी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, कभी इधर बोलते हैं कभी उधर बोलते हैं। ठीक है भाई, कैसे कर लेते, बैलेंस करते रहते हैं, साडा भरा बैलेंसिंग तराजू दे पलोड़े बराबर करते रहते हैं। आगे जी, जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा का वकील इलेक्शन कमीशन से मुकालमा, हमने टीवी पर देखा है उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, यह क्या तरीका है? हमें टीवी पर नजर आ गया, आपको नजर नहीं आया। इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल रहे। एटलीस्ट एक खातून जज ने अपना जो टेम्परामेंट है और अपना जो मोरल है वो हाई रखा है, एंड दैट इज हाईली कमेंडेबल। मुईद पीरजादा साहब, इकोनॉमिस्ट ने मुर्तजा सोलंकी भाई के साथ अच्छा नहीं किया। मुर्तजा भाई तो एक स्पेशल खत के इकोनॉमिस्ट के मुदीर से बड़े मुश्किल सवाल पूछने वाले थे। मुर्तजा सोलंकी भूल गए कि इकोनॉमिस्ट का मुदीर लंदन में रहता है और उसका कोई रिश्तेदार पाकिस्तान में नहीं होता जिसको ऐसे उठा कर ले आएगा और बाद में परेशानी होगी। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। शुरू में आपने एक वीडियो मुलाजा की, वेरी इंपॉर्टेंटली मैं उसके ऊपर एक आध कमेंट करना चाहूंगा। वो वीडियो सरदार लतीफ खान खोसा साहब की और मोहतरम चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा साहब की है। वीडियो मैंने बगौर देखी, एक दफ़ा देखी, दूसरी दफ़ा देखी, तीसरी दफ़ा देखी, और फिर मेरे जहन में मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के वो वाले जुमले भी गूंज रहे थे जो आज से 3-4 दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि लाइव नशरियात के डाउनग्रेड्स भी होते हैं, और मैं जब घर जाता हूं तो मेरी अहलिया मुझसे पूछती हैं कि आज आप सीधे नहीं बैठे थे। बिल्कुल, लाइव नशरियात के डाउनग्रेड्स भी होते हैं, प्लस भी होते हैं। प्लस ये कि अगर कोई बहुत बढ़िया किस्म की बात निकल जाए मुंह से तो उसका इम्पैक्ट होता है, और प्लस ये कि अगर बढ़िया बात ना हो और बात ऐसी हो जो अनोइंग हो तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो क्योंकि मेरा ताल्लुक टीवी जर्नलिज्म से है और तकरीबन ज़िंदगी गुजार दी है इसके अंदर, अपनी जवानी इसको दे दी, तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मौजूद चीफ जस्टिस साहब की अहलिया की बात तो उन्हें उनके मूड के ऊपर ग्रां गुजरी होगी यकीनन, लेकिन अगर यही बात जिनको बराह रास्त झाड़ पड़ रही होती है, जैसे आज डांट पड़ी लतीफ खोसा साहब, उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी, बार बार आप एटलीस्ट सुन तो लेना, इतना तो मतलब जिगर गुर्दा होना चाहिए। अगर बराह रास्त बात सुनी नहीं जा रही तो उस वक्त उनके घर के लोग, बच्चे, अहलिया, बेटियां जब अपने वालिद को इस तरह बेइज्जत होता हुआ देख रहे होंगे, वो अपने वालिद से मुताल्लिक और फिर जनाब मोहतरम आपसे मुताल्लिक क्या राय कायम करेंगे, इसके ऊपर बड़ा एहतमाल रहेगा। और मुझे लगता है कि इसको कंसीडर करने की जरूरत है कि या तो इस तरह का लाइव नशरिया होना नहीं चाहिए, अगर है तो बड़ा अच्छा है, और अगर है तो इसके भी कोई कवायद व ज़वाबित होने चाहिए कि बराह रास्त जा रहा है और लगे ना कि इसमें किसी की तज़हीक या तज़लील हो रही है।
अब मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मेरी बात कोई तबाह मोहल्ला पे गिरां गुजरी हो, क्योंकि मामलात इस तरह के हैं कि किसी वक्त किसी को भी कुछ बुरा लग सकता है और कोई नहीं पता कि सानू भी क्या कहता जब जी आपने तौहीन अदालत कर डाली है। तो मैं एक मशवरा दे रहा हूँ बहुत बतौर ब्रॉडकास्टर कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।